no need to perform rectification for preparation of numericals. As I have explained already, that numerical is the process to analyze the concept of theory. Okay, if theories, you have to perform commanding in theory. Concept is clear, fundamental is applicable. Then you feel more and more comfort to yourself to decide solution of any numerical. For example, this numerical is. This is the particular numerical. The freezing point of 5% sucrose solution is 271 Kelvin. The freezing point of 5% sucrose solution is 271 Kelvin. Okay? Calculate the freezing point of 5% glucose solution. Okay? Clear? The vapor, the freezing. See here, very important and applicable numerical. Since we are going to discuss here, a minor change take place. Here is the minor change. What is that minor change? You can notice here. You can see here. The freezing point of 5% sucrose solution is 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose solution. The freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. This is the simple numerical. और इसमें 5% सुक्रोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है और इज गिवन 273.15. Clear? How will you decide its numerical? First of all, you have to find out the value of Kf from it. Means applying first condition. And that Kf you have to apply for second case. And find out the value of delta Tf. After deciding the value of delta Tf, you can find out the freezing point of glucose solution easily. You have to decide here. Calculate the freezing point. This is the freezing point that is given. See, first of all, for first case. First case means for sucrose solution. For sucrose solution. Here W is given how much? 5 gram. W is given here exactly 5 gram. And 5%. See, 5% glucose sucrose solution. In the solute is 5 gram. And solvent is considered to be 100 gram. 5% means 5 gram is present in 100 gram. So this is the weight of solute W1. And W2 means weight of solvent. That is given how much? 100 gram. Clear? Clear? Now we have to find out the molar mass of sucrose. Sucrose, you know, C12H22O11. This is the formula of sucrose means sugar. And you should remember, let us consider M1 342. Calculate कर लेना, ये आएगा 342. This is the molar mass. This is the weight of solvent. This is the weight of solute means sucrose. This is the molar mass of sucrose 342.
ultimately find out the value of, here you have to decide the value of molality. Therefore molality is equal to W1 M1 into W2 in kg. Apply the value. W1 is given here how much? 5. Molar mass 342. And weight of solvent in kg. What is the weight of solvent here? 100. And kg means you will divide it. You can convert here already. Here 100 gram. If you want to convert into kg, then 100 upon 1000 means how much? 0.1 gram. So right here, weight of solvent in kg 0.1. Through calculation, you can find out the molality of sucrose. Now applying this formula, delta TF is equal to KF into small m. Okay, this is given delta TF. This is the formula. Delta TF is equal to KF into small m. Delta TF, depression in freezing point. Clear? KF is freezing depression constant. That is known as the depression constant. That will depress because this is the rule. Clear? And M is considered to be the molality. Here this value is given. Depression in freezing point. Freezing point of 5% glucose solution is this. You will find out the value of delta TF. And how will you decide the value of delta TF here? Delta TF कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए. तो delta TF is equal to, one thing I want to explain. When any solute, when some amount of any non-volatile compound used to dissolve in water, then the freezing point of solution used to decrease. It is known as depression in freezing point. और इस कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है कि किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है. किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T naught F minus TSF. Delta TF is depression in freezing point. T naught F means freezing point of solvent, and TSF means freezing point of solution. Apply here. What is the pure solvent? 273.15 minus value of TS is given here, this 271. Calculate. Hence you can find out the value of delta TF. I hope you can calculate. So on account of this relation, you can find out the value of KF. And here KF is equal to delta TF upon small m. With the help of this one, you can decide the value of KF, which is constant for sucrose solution as well as glucose solution. यहाँ तक समझ में आया आपके? अब second approach. For second case means glucose solution. Especially for the glucose solution, we have to apply my concept related to glucose solution. What is this one? Especially for the glucose solution, this one is given. You can also find out its molality so easily. For glucose 5% means its weight is also given 5 gram. Weight of solvent also given how much? 5% means 100 gram, which is converted to 0.1 kilogram. And molar mass of glucose C6H12O6 180. So you can also find out its molality. Molality is equal to
W1 upon M1 into W2 in kg. Everything is given here. W1 is given, weight of solute. M1 molar mass is given. W2 weight of solvent is given in kg. So easily you can find out the value of molality means small m. निकाल लेंगे ना, मोलिलिटी इसकी भी निकाल लिया आपने। और जब मोलिलिटी निकाल लिया, सी सब मोलिलिटी किसकी फाइंड आउट कर लिया आपने? ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए। देन अप्लाई दिस रिलेशन, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल एम। अब जरा समझिए इस न्यूमेरिकल के लिए, ये केएफ तो यही होगी जो यहां से निकाला था, ये केएफ रिमेन कांस्टेंट। M is the molality which you have to calculate it by this. So this you have calculated already, and molality calculated through this relation. इससे सारी वैल्यू रख करके निकाल लेंगे। तो आप इससे क्या फाइंड कर लेंगे? डेल्टा TF you will find. डेल्टा TF निकाल आएगा, ये किसका होगा? Depression in freezing point for glucose solution. And here value of KF already given this one. मोलिटी फॉर दिस फ्रॉम हियर, ये आप फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड करने के बाद फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन सिंस डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएसएफ, टी नॉट एफ माइनस टीएसएफ। ट्राई टू लिसन। डेल्टा टीएफ ये निकाल चुके हैं, ये डेल्टा टीएफ इस वैल्यू रख करके केएफ की ये वाली वैल्यू इससे जो कैलकुलेट करके आप निकालेंगे, और मोलिलिटी इसकी वैल्यू ये सब मैंने दे दिया है, यहां रख करके निकाल लेंगे। तो डेल्टा टीएफ आपको मालूम है, और टी नॉट एफ रिमेन सेम, टी नॉट एफ वही रहेगी क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज यूनिवर्सल 273.15। तो ये दिस इज नोन, ये मालूम है। अल्टीमेटली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, किसके निकाल लेंगे? टीएस आ जाएगा कि नहीं? when this one given, therefore TSF means freezing point of solution means glucose solution। क्या आ जाएगा? यहां देखिए, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये माइनस में रहेगा इधर, और इधर आ जाएगा माइनस टी नॉट एफ। अरे भाई ये हमें फाइंड करना है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस मान लेती है, माइनस माइनस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई द माइनस का, तो आप निकाल लेंगे। आप तो इसको कैलकुलेट कर ही लेंगे। क्लियर? हाँ, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर नहीं मैच हो रहा है। मे बी इन योर आंसर दिस यू विल कैलकुलेट इन केल्विन, और मे बी आंसर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में निकलेगा, और आंसर हो सकता है डिग्री सेल्सियस में दिया हो। ओके, तो आप जानते हैं 273 केल्विन इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो आप रिलेशन तो जानते हैं ना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। और यदि केल्विन को सेल्सियस बदलना है तो क्या करेंगे उसमें? 273, वाइस वर्सा। 20 डिग्री सेल्सियस है और इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो 20 प्लस 27 it is converted into Kelvin, and if it given in Kelvin and converted into degree Celsius, we have to reduce 273 from it. Okay, तो आपको कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? एट वन ऑफ द I will take 5 minutes more. One numerical that is very very important, most important numerical is that is related to abnormal solution.
and as per instruction, numericals related to abnormal solution may produce complexion during their solution. But don't lose it. Attempt with patience. With full confidence, you will find out the solution. A numeric question is, you know question for abnormal solution. 19.5 gram fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water to form solution. The depression in freezing point. The depression in freezing point for above solution means depression in freezing point of solution is 1 degree Celsius. मतलब इस solution का depression in freezing point is 1 degree Celsius. Calculate 1/2 factor and dissociation constant for CH2FCOOH. This is the question. Generally, this question is given also in NCERT book, question number maybe 33. And this question is very very important. This is the solution. ये solute है. Water is solvent, its quantity is given. Value of delta TF is also given 1 degree Celsius. तो इसमें दो चीजें निकालना, 1/2 factor and degree of dissociation. Solution में देखिए पहला काम है CH2FCOOH. जैसे इस पे नजर डालेंगे you will guess it is abnormal solution. ये abnormal solution है. क्यों? This is the volatile compound. Okay? And what is given here? You have to note down which is given here. Weight of solute means this one is given how much? 19.5 gram. Okay? Weight of solvent. Solvent is here water. Weight of solvent means W2. That is given 500 gram. If you convert into kilogram, 500 upon 1000 means 0.5 kg. This is the weight of solvent, okay? And here delta TF for this solution. This is the value of delta TF. Depression in freezing point is given 1 degree Celsius. This one is given here. And now you have to calculate the value of 1/2 factor. Value of 1/2 factor. So for this solution, 1/2 factor के लिए आप इक्वेशन याद करें, मैंने बताया था. First equation, calculated molar mass upon observed molar mass. Number of moles after dissociation, number of moles before dissociation. Means first of all, one formula I want to explain here. Observed molar mass. मैं अभी बता दूं क्या होता है. Observed molar mass is that molar mass which is calculated experimentally, and when that related compound used to dissolve in water and convert into solution form, और वो तभी कन्वर्ट होगा when their dissociation or association take place. तो observed molar mass dissociation या association के बाद का होता है. Clear? And its formula, observed molar mass is equal to 1000 into Kf into W1 upon delta TF into W2. This formula used to decide the value of observed molar
mass. One thing I want to clear here, Kf is depression constant, Kf. And one thing more which is given in numerical, Kf of water. Kf of water is given 1.86. For this solution, when the solution is dissolved in water, so Kf for water, Kf of water means depression in freezing point value is given, depression constant when related solute dissolved in water, that is universal value 1.86. And W1, this is the weight of solute here, not solvent. बहुत सारी बुक्स में W1 मान लिया गया है सॉल्वेंट को, W2 सोल्यूट को, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता. W1 is here weight of solute and W2 is weight of solvent. W1 is this and W2 is this. So you can find out the value by applying M. You will find the value of this one applying this value. This is equation first. कौन सा है वैल्यू ये? Absorbed molar mass. Absorbed molar mass. And now you have to calculate one more. Calculated molar mass. And do you know about calculated molar mass? Calculated molar mass means that molar mass which is calculated on the basis of this chemical formula. इन सारे के एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए. तो इसका यदि कैलकुलेटेड मोलर मास आपको कैलकुलेट करना हो, CH2FCOOH, तो कार्बन 12 प्लस 2, फ्लोराइड 19, कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 1 मेक्स 78. यानी इसका कैलकुलेटेड मोलर मास आ जाएगा 78. तो एक तो रिलेशन बन जाएगा, देयर वांट ऑफ फार्मूला, वांट ऑफ फैक्टर मींस कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. मैंने भी बताया था कैलकुलेटेड मोलर मास का होल अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास. बोथ द वैल्यूज आर गिवन हियर, सो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू हियर. वांट ऑफ फैक्टर इससे निकल आएगा कि नहीं? वांट ऑफ फैक्टर की कोई वैल्यू निकल आएगी. इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिया, वांट ऑफ फैक्टर आपने निकाल लिया. एक पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर को आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया. एंड सेकंड केस में यू हैव टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, वन थिंग मोर यू हैव टू रिक्वायर्ड हियर. क्या? आप मोलैलिटी का फार्मूला निकाल लें. मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W1 M1 इंटू W2 इन kg. निकाल लेंगे कि नहीं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1 हियर? 19.5 ग्राम. M1 मोलर मास 78 मोलर मास, वो रखेंगे हम कैलकुलेटेड मोलर मास. एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg? 0.5. Hence we can find out the value of small m. Small m means molarity. Now to decide the value of dissociation constant, we have to apply here post-wall dilution concept. Means dissociate to this one. CH2FCOOH used to dissociate CH2FCOO negative plus H positive. Right? Very simple concept. Try to understand. Let us here. इसको इधर करते हैं. इक्वेशन आप जान जाना यहां पे है. Right? This. Initial number of moles. See. Initial moles. Let us consider 1 mole. It must be 0, 0. Initial moles, you know, before moles, before dissociation. और इसके जब डिसोसिएशन नहीं हुआ तो पहले तो इसका 1 मोल दिख रहा है, साथ साथ कुछ नहीं लिखा 1 है, और इसका चूंकि डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है तो देयर वैल्यू मस्ट बी 0. Let us consider the
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, क्या मान लेते हैं, अल्फा यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा को मान लेते हैं, लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया। तो ये एक लॉजिक होता है, 11th में आपने किया। व्हाट इज द लॉजिक, इसके जितने मोल्स होते हैं उतना ये इससे अल्फा निकलेगा, और इसके जितने मोल्स होंगे उतने गुना अल्फा बनेगा। मींस 1 मोल है तो इससे अल्फा निकलेगा, 1 मोल इसमें अल्फा बनेगा, इसमें बनेगा। तो क्या आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन और नाउ फाइनल, क्या यहां लिख सकते हैं, ये इनिशियल मोल्स थे और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। या हम क्या कर सकते हैं, यहां एक चीज और लिख सकते हैं, ये थे नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, और ये लास्ट वाले क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, फाइनल या आफ्टर, ये बिफोर डिसोसिएशन, इनिशियल मींस बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, और फाइनल में नंबर ऑफ मोल्स फाइनल मैंने आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स कब, आफ्टर डिसोसिएशन। अब इसमें देखिए 1 था, अल्फा निकल गया, यहां 1 माइनस अल्फा, इसमें पहले 0 था, अल्फा बनाते अल्फा रहेगा, इसमें जोड़ा जाएगा, इसमें पहले इनिशियली 0 था, 0 क्यों था, क्योंकि डिसोसिएशन पहले से 0 था ना, और आफ्टर डिसोसिएशन जितने मोल होते हैं उतने गुना अल्फा बनता है, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा होगा, यू नो, देयरफॉर total number of moles, total number of moles after डिसोसिएशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे यहां पर, 1 माइनस अल्फा, इसका बचा था, इसका अल्फा, इसका अल्फा, एक अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, ये बचे। डिसोसिएशन पहले 1 था और डिसोसिएशन के बाद कितना आया, 1 प्लस अल्फा, तो एक दूसरा फार्मूला लगा सकते हो, देयर वन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने, 1 प्लस अल्फा, और नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन 1, एक इक्वेशन ये बन गया, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ट्राई टू अंडरस्टूड। ये फर्स्ट इक्वेशन बना, ये वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाली है, और यहां ये सेकंड इक्वेशन बना, वन ऑफ फैक्टर आपको मालूम है, ठीक है, इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, with the help of this equation you can find out the value of alpha, with the help of this equation you can find out the value of alpha, निकल आएगा अल्फा आसानी से, और when you will find out the value of alpha, समझ में आया, ये कर देते हैं, डिसोसिएट होता है, इस हियर वी हैव टू अप्लाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, 1 0 0, और आफ्टर यदि वहां पे 3 होता तो 3 अल्फा हो जाता, यहाँ 5 होता तो 5 अल्फा होता, और यहाँ 1 था तो अल्फा केवल निकला। अभी अल्फा जब मालूम हो जाएगा, और जब अल्फा मालूम हो जाए तो 1 मिनट स्पेस कम है, अल्टीमेटली यहां पर अप्लाई कर चुके हैं, जान चुके हो पहले से, तो यहां पे थोड़ा लिख दें, सी हियर, सब अल्फा हमने फाइंड कर लिया, देन अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड्स लॉ, ओस्टवाल्ड का लॉ था क्या, सी के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, एंड वी की जगह क्या लिख सकते हैं, सिंस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, ये 1 अपॉन वी आ रहा है, 1 अपॉन वी की जगह सी रख सकते हैं, और सी स्टैंड हियर फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस मोलालिटी, ये है जो ये फार्मूला है, यू शुड रिमेंबर, C इज इक्वल टू 1 अपॉन V, यानी यहां 1 अपॉन V आ रहा था, और 1 अपॉन V की जगह लिख सकते हैं C, मैंने कंसंट्रेशन और वॉल्यूम रेसिप्रोकल होते हैं, लाइक दिस, एंड C स्टैंड हियर मोलालिटी, और मोलालिटी ये निकाल चुके हैं, यहां पर निकाल चुके हैं ना, तो ये K ही फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अब इसको क्या कर सकेंगे, 1 मिनट हियर 1 अपॉन V की जगह क्या लिख देंगे, C, then C अल्फा स्क्वायर upon 1 minus alpha. You have to calculate the value of alpha from here. Alpha यहां से कैलकुलेट कर लिया था, किया था ना, and C means molality, C stand for molality, ये यहां से कैलकुलेट कर लिया था, तो C is given, alpha is given,
Ultimately you can find out the value of K, and K is here dissociation constant, right? अब एक जो न्यूमेरिकल आपका अप्रोच बना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, जिसमें शायद आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक में दिया न्यूमेरिकल नंबर 37, उसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के पार्शियल वेपर प्रेशर दिया है, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया है 632 अगेंस्ट 714 है, दिस इज गिवन। और आपको जो उसमें डेटा दिया है, उस डेटा में आपका एसीटोन का मोल फ्रैक्शन दे रखे, और उसके नीचे आपका एसीटोन का पार्शियल प्रेशर दिया है, सारी डेटा दिया है। बाय द सेम वे उसके नीचे क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर का डेटा दिए हुए, और आपसे कहा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दीज डेटास यू हैव टू कैलकुलेट हुज वेरिएशन टेक प्लेस इन नेगेटिव डिविएशन, हुज पॉजिटिव डिविएशन टेक प्लेस। मींस इनको आइडियल सॉल्यूशन यदि मान लिया जाए तो एक चीज ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन यदि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सर लिया गया है तो इसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। यदि क्लोरोफॉर्म की जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का जो बेस लेंगे तो एसीटोन की जो मोल फ्रैक्शन है सिमिलर कंसीडर टू बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, और ऊपर जो वैल्यूज दी है, लंबी वैल्यू दी है उसकी, किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, उसको 100 से मल्टीप्लाई है ना, आप देखिए ध्यान से डेटा में 100 से मल्टीप्लाई है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 111 पॉइंट समथिंग है, वो 0.11 आ जाएंगे ना। और इसके बाद ये जो आपने बनाया उसमें डेटा दिया हुआ है, आई एम नॉट विलिंग टू एक्सपेंड योर टाइम हियर, बट वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन कि इन योर ग्राफ पेपर, इन योर दिस न्यूमेरिकल इज पॉसिबल ओनली इन ग्राफ, its solution is possible only in graph paper. Simply, this is the, suppose this is the graph paper. This is the graph paper. Here you have taken the value of vapor pressure, and here along x-axis you have taken here mole fraction. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। अब यहाँ 100 में लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, मैंने 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 and so on. These are the vapor pressure. Vapor pressure, okay, along y-axis. And here you have taken the values of mole fraction. अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ये किसका, एसीटोन का था, तो मान लीजिए इसकी पहली वैल्यू 111.1 है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन इसमें 100 ऐसे लिखा है, आप देखिए डेटा में, तो ये जब यहां लिखे तो 100 से डिवाइड करके लिखे तो इसकी जगह आएगा 0.11 समथिंग आ जाएगा। तो यहां चूंकि इससे इजी होगा करने में, 100 का मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, तो उसमें डिवाइड करके करिए ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, here 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 and so on। और ये जो मोल फ्रैक्शन किसका सबसे ऊपर दिया, एसीटोन का, वही मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म के लिए भी लेंगे और वही मोल फ्रैक्शन किसका होगा, एसीटोन के लिए तो है ही, राइट। और बाकी आप इसमें देखेंगे तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है, and here the mole fraction of chloroforms. So here we have plotted the value of the mole fraction of chloroform here along x-axis, and in 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एक simple scale हमने बनाया, and towards y-axis this is the value of vapor pressure under the fixed scale, 100, 200, 300, मतलब स्केल मान लिया इतने कॉलम इतने 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जैक्ट, तो ये ग्राफ पेपर में ही बनेगा, यू नो। एंड नाउ इन न्यूमेरिकल यू कैन सी
इस डेटा में सबसे पहले दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन मल्टीप्लाई बाय 100 और जैसे इसकी वैल्यू दी 11.8। तो आपको एक न्यू डेटा बना करके मोल फ्रैक्शन जितनी वैल्यूज दी है इसके एसीटोन की वो 100 से डिवाइड कर दी। जैसे 100 मल्टीप्लाई में 11.8 था तो केवल मोल फ्रैक्शन 100 हटा दीजिए तो 0.11 बचेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह लिए सारी वैल्यूज इधर रख लीजिए। इसके नीचे दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन और उसके नीचे दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, अब यहां पे जब इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, इनिशियल वैल्यू 0 दी है तो यहां पर आप एक चीज पाएंगे, ये जो एसीटोन है ये 0 ही है, एसीटोन 0 ही है और क्लोरोफॉर्म 632 पॉइंट समथिंग दिया, 632 पॉइंट समथिंग इस तरह सारी दी है। फिर यहां से शुरुआत होती है आगे से, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू आती है मोल फ्रैक्शन की, ये जैसे आते कि पहली 0.1 तो यहां पर इसकी भी एसीटोन की वैल्यूज दी है। तो आपको ये वैल्यूज तो ऐसी चीज रखना है और ये काम और कर लेना है। यहां पी टोटल मीन्स ये जो नेक्स्ट वैल्यू है अलग अलग डेटा, ये तो 0 पे है पर फिर ये है इधर है जैसे यहाँ पे 0.11 से शुरू होगा तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू यहां पर है इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म दोनों जोड़ करके यहां लिख दीजिए। यहां इन दोनों का 0 प्लस ये तो इसका तो 632 पॉइंट समथिंग है, इसमें ये दोनों टोटल यहां आ जाएगा, इसमें ये दोनों को जोड़ के टोटल यहां आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यू विल नोटिस द रीजन, क्यों? क्योंकि मैं टोटल वाला भी इधर बताना। आपने देखा इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव डिविएशन और एक नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में अब जैसे जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन होती थी आइडियल में, यो स्ट्रेट ये और ये भी स्ट्रेट होती थी, लेकिन जब इससे बनाएंगे तो स्ट्रेट नहीं। आप पहले क्या करेंगे समझने, ग्राफ पेपर में बनाना कैसे, स्केल बना लीजिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बताएं, पहली रीडिंग मोल और यही मोल फ्रैक्शन दोनों के लेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन ये कंसीडर करके चलेंगे एसीटोन के, यही आइडियल का मतलब है। एंड हियर यू नो क्लोरोफॉर्म, जैसे एसीटोन हमने लिया पहले तो एसीटोन इसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन लेते जाएंगे एसीटोन के, ये वेपर प्रेशर की आ जाएगी इसको। बाय द सेम वे मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म के लिए मोल फ्रैक्शन ये रखेंगे और वेपर प्रेशर इधर आ जाएगा। अब जैसे अकॉर्डिंग टू योर डेटा यदि हम किसको लेके चलते हैं एसीटोन, तो एसीटोन 0 पे उसका वेपर प्रेशर 0 ही है तो ये 0 ही रहा। इस बार नेक्स्ट सेकेंड रीडिंग जब मोल फ्रैक्शन उसका क्या आ गया 0.11 तो ये 0.1 है और 0.11 का मतलब है इससे थोड़ा सा आगे, 0.1 के जो बना है इसके लिए इससे थोड़ा सा आगे। और आप उसकी वैल्यू देखिए, वेपर प्रेशर 50 पॉइंट समथिंग है, वेपर प्रेशर जो दिया है इसका एसीटोन का तो 50 पॉइंट समथिंग है, 53 ऐसा कुछ है। तो ये देखिए यहां पर 100 आ रहा है, ये 0.1 है, इससे थोड़ा आगे, और यहाँ ये 100 आ गया तो 100 से कम 54 तो ये 50 और 54 समथिंग ये पॉइंट आया। इसी तरह नेक्स्ट जो है क्लोरोफॉर्म की वैल्यू है 0.23 समथिंग आ रही है, यहाँ 0.2 है और 0.23 मतलब होता है 2 से थोड़ा आगे, और यहाँ जो आगे वैल्यू दी है उसमें 100 के सामने 100 है, उसमें 50 था 50.3 था और उसमें 100 है तो इसका वेपर प्रेशर 0.23 पर, मोल फ्रैक्शन जब नेक्स्ट रीडिंग होगी 0.33 पर तो एसीटोन के 0.23 पर यानी 2 से थोड़ा आगे और 100 थोड़ा आगे है इसके और 100 के ठीक सामने ये, और इस तरह इसके सारी वैल्यू जैसे 0.36 है, अब जैसे यहां पर नेक्स्ट दे रहे हैं तो 0.3 आ रहा है और यहां पे दोनों के 0.35 मींस इसके 0.3 से 0.4 के पहले आएंगे यानी 0.3 और 4 के बीच में, और यहाँ 200 ये 200 के ठीक सामने देख रहे हैं और इससे थोड़ा आगे, तो ये सारी वैल्यू टिक लगा दीजिए। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 0.4 से आगे थोड़ा सा कर लीजिए, जैसे 0.5 के ठीक ऊपर है और 0.5 जो समथिंग दिया है उसकी वैल्यू और इधर 300 दिया होगा वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर, ये इसका एसीटोन का। तो ये ऐसे पॉइंट रख दीजिए और मिला देंगे तो ऐसे आ जाएगा। और इसी तरह क्लोरोफॉर्म जीरो पर, जीरो जब इसका मोल फ्रैक्शन है तो क्लोरोफॉर्म में 632 है, तो ये जीरो पर इसका क्या है 600 है और ऊपर थोड़ा 32, और इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे इसके नीचे आ जाएगा, सारे पॉइंट आते चले जाएंगे। ये ग्राफ पेपर में ही बनता है। और जो टोटल निकाले वैल्यू तो मोल फ्रैक्शन वही रहेगा, और इस मोल फ्रैक्शन में जैसे जीरो पे टोटल कितना आएगा 332 ही था, 632 ही है जीरो पर। और इसके बाद ये जब पॉइंट 1 था तो इन दोनों का टोटल यहां आया होगा, इन दोनों का टोटल यहां आया, इन दोनों को जोड़ करके, तो ये ऐसे करेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन यही रहेगा। और वेपर प्रेशर की जगह इन दोनों का जो मिला करके टोटल आएगा वो यहां देखेंगे, और इस तरह आप करेंगे पाएंगे तो इसका ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे। ये तो ग्राफ पेपर से ही आएगा बनने में ऐसे, यू नो। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, यदि स्ट्रेट होता तो आइडियल सॉल्यूशन था, और स्ट्रेट जो होता है उससे थोड़ा नीचे को जा रहा है, मींस दिस इज शोइंग टू निगेटिव डिविएशन। निगेटिव, जैसे ये स्ट्रेट जाता तो स्ट्रेट से थोड़ा नीचे को जा रहा है, निगेटिव है। ये स्ट्रेट बिल्कुल नहीं जा रहा है, थोड़ा ये भी नीचे से जा रहा है तो निगेटिव ही है। ये जैसे स्ट्रेट जाता, ये स्ट्रेट जाता और ये भी स्ट्रेट आता तो आइडियल होता। तो ये इसमें थोड़ा नीचे को, ऐसे स्ट्रेट नीचे को जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ये स्ट्रेट है जाके थोड़ा नीचे को जा रहा है। तो इट यूज्ड टू इंडिकेट दैट दीस डेटा आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अबाउट नेगेटिव डिविएशन विद आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, ये मतलब क्लियर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन। और ये कंप्लीटली क्लियर होता है किससे, ग्राफ पेपर। ओके, तो दिस इज द सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ द न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और आज के लेक्चर में सिर्फ यही था। थैंक यू। एक चीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मेरे YouTube चैनल को केमिस्ट्री विद डॉक्टर परिहार सब्सक्राइब जरूर करिए। उसका एक ही कारण है, केवल एक एडवांटेज है, ताकि ये जो हमारे डिफरेंट मटेरियल है ये अपने आप आपके पास, मैं जब इसमें अपलोड करेंगे हम, मान लीजिए मैंने आपको वीडियो भेजा और किसी तरह मिसिंग हो गया तो आप YouTube से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।